क्वेश्चन नंबर 45, कैरन कंपनी। चलो, we discuss the possible sources of financial synergy arising from Karen Company's acquisition of Danton Company. अह, ठीक है, फाइनेंशियल सिनर्जी पे करते हैं। मैं बोलता हूँ उसके पहले ना वी शुड डू दिस ओनली। उसके पहले मुझे लगता है अपन ये थ्योरी जहाँ इससे अच्छा पहले सम कर लेते हैं। Advise the directors on suitable share for share exchange offer which meets the criteria specified by Danton Company shareholders and calculate the effect of cash and share for share exchange offers on the post acquisition wealth of both Karen Company and Danton Company shareholders. The new client has approached you for advice on a potential acquisition. Canon Company is a customer electronics manufacturer and retailer. The company obtained a listing 8 years ago with the founders retaining 20% stake in the business. While his Canon Company had previously experienced rapid growth in earnings before tax, problems arose soon after the listing. As competition intensified. Although the company remains profitable, annual growth has declined significantly and is currently 3%. The board is concerned by lack of future growth opportunities. The current share price reflects these concerns, trading well below the offer price of 8 years ago. In response, the directors have decided to invest in the market development strategy for future growth, utilizing significant cash reserves to acquire companies in other areas of the country where competition is less intense. The board has identified a potential target, Danton Company. Danton Company. Danton Company is a privately owned consumer electronics company. Danton Company is a privately owned consumer electronics company established 10 years ago. Significant unrelieved losses were incurred in the early years of the development, although the company is now profitable and achieving growth in the earnings before tax of 6% per year. However, cash reserves are low. Access to capital has acted as a severe constraint to Danton Company's reinvestment potential throughout this period. The founders and their families own 60% of the shares, with the balance held by venture capitalists organization, which acquired its equity stake around 6 years ago. ठीक है। अभी एक्विजिशन इंफॉर्मेशन क्या बोलती है? Karen's board is keen to ensure that Danton Company's founders remain as board as the directors after the acquisition, and the company has sufficient cash reserves to purchase Danton Company outright. Early discussions between the directors of both companies suggest Danton Company shareholders would approve a cash offer of 13.1 per share. अच्छा, वो लोग 13.1 पर शेयर देने के तैयार है। एज एन ऑल्टरनेटिव द बोर्ड इज कंसिडरिंग अ शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज टू फंड द acquisition in order to preserve cash for future acquisitions and dividend payments. Recent mergers have attracted an acquisition premium of around 25 to 30%, and Danton's directors indicated that the shareholders would be expecting a premium towards the higher end of the scale, मतलब 30%. Higher end of the scale for share offer. Karen Company has therefore asked you to design a share for share scheme which will allow for 30% acquisition premium. You have been provided with extracts from the latest financial statements for both companies. ठीक है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग्स बिफोर टैक्स दिया हुआ है। इसमें मैं क्या करूँ मतलब? अच्छा, नीचे और इंफॉर्मेशन है इसकी। ओके ओके।
बुक वैल्यू ऑफ कैरन कंपनीज 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स इज 375। हाँ, तो मतलब ईपीएस वगैरह सब मिल जाएगा, तो उन सब चीजों के लिए ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है। आई थिंक वी कैन डू इट। कैरन कंपनी, ठीक है ना। कैरन कंपनी, डैंटॉन कंपनी। इसको मैं एक काम करूँ क्या, वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ। आई नो थोड़ा मैंने एडजस्ट एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, बट अभी ठीक है। उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 448.6 कैरन कंपनी का, और डैंटॉन का 201.8। अर्निंग्स बिफोर टैक्स मुझे कितना दिया हुआ है? 381 पॉइंट, एक मिनट, 381.9, 116, 116.3। सम में करूंगा, मुझे इतना मिलेगा। सम क्यों कर रहा हूँ लेकिन मैं, एक मिनट, सम क्यों किया मैंने? शेयर्स, मेरे पास कितने शेयर्स है मैं वो देख लेता हूँ। देखो मेरे पास 375 का शेयर कैपिटल है, बुक वैल्यू मेरी 375 की है, 0.5 के मेरे शेयर्स है, तो और ये कैरन का है ना, हाँ, तो 375 डिवाइड बाय 0.5, मतलब ये शेयर्स हो गए। ठीक है। दी शेयर्स आर करेंटली ट्रेडेड एट 5.8। चलो फिर मुझे शेयर प्राइस भी मिल गई। कितना है? 5.28, सॉरी, 5.28। चलो, फिर मेरे पास अभी शेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, ईपीएस निकाल सकता हूँ, पी रेशियो निकाल सकता हूँ। मार्केट वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल गई, ईपीएस अर्निंग्स बिफोर है ना, लेकिन ये उसके मेरे को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स चाहिए। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। अभी चेक करते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द फाइनेंस डायरेक्टर एक्सपेक्ट्स द पी रेशियो टू इंक्रीज बाय 10% ऑफ द एक्विजिशन प्रोसीड्स, इफ द, सॉरी, इफ द एक्विजिशन प्रोसीड्स। पी रेशियो 10% से इंक्रीज होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड पी रेशियो आफ्टर एक्विजिशन 1.1। Danton upgraded its manufacturing facility during the previous year and expects to make pre-tax cost savings of 2.5 million at the start of the current financial year. The book value of Danton's, ये देखो मिल गया। देखो, the book value of Danton's 0.25 shares is 35 million। तो 35 मिलियन क्या है बुक वैल्यू ऑफ 0.25 शेयर्स, शेयर प्राइस, तो ये मार्केट वैल्यू। तो मेरा जो है, जो भी कुछ होगा वो इसके बेसिस पे होगा। इधर मैं लिख देता हूँ सिनर्जी, तो हमें टोटल, ठीक है। अभी बेस्ड ऑन एनी, सॉरी, बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ कंपनीज और द कंपेरेबल साइज एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, इट इज एस्टिमेटेड दैट Danton's पी रेशियो इज 20% हायर देन कैरन कंपनीज करंट पी रेशियो, करंट पी रेशियो से
20 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 20% ज्यादा है। कैरन कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एस्टिमेट्स प्री टैक्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट सिनर्जीज of 15.2 million to arise as a result of acquisition. In addition, the finance director anticipates annual pre-tax financial synergies of 5.3. अच्छा, ये जो है ना वो रेवेन्यू और फाइनेंशियल सिनर्जीज है। बट दिस सिनर्जी जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे ये वो वाली सिनर्जी नहीं है। दिस सिनर्जी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनर्जी। ये बेसिकली एक्विजिशन के बाद इन जनरल जो कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है उसमें जैसे सिनर्जीज बनती है ना, वैसी सिनर्जी होती है ये। रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है 20% का, तो मैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकाल लूंगा, है ना। इंटू 0.8, 2.8, मैंने ईपीएस निकाल लिया। पी रेशियो 20% हायर है, हाँ तो 20% हायर तो मुझे ये मिल गया। शेयर प्राइस मुझे अभी मिल जाएगा। शेयर प्राइस ऑफ डेंटॉन, कितना है शेयर प्राइस ऑफ डेंटॉन? पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस अपॉन या मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू अपॉन ईपीएस। सो शेयर प्राइस ही लिख देता हूँ, छोड़ना। शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस, क्योंकि मैं ईपीएस लिख रहा हूँ ना, मैं अर्निंग्स नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं मार्केट वैल्यू ये वर्ड यूज नहीं करूंगा। शेयर प्राइस इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय, सॉरी, हाँ पी मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। तो ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। मुझे शेयर प्राइस मिल गई, मतलब अब जब मुझे शेयर प्राइस मिल गई है तो मुझे शेयर वैल्यू मिल गया। चलो, अब मैं सिनर्जी पे आता हूँ या फिर मैं वैल्यूएशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मुझे दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा। Advise the directors on a suitable share for share exchange offer which meets the criteria specified by Danton company shareholders, and calculate the effect of cash and share for share offer on the post acquisition wealth. See, यहाँ पे देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं। They are saying that recent mergers have attracted acquisition premium of around 25 to 30%, and Danton's directors indicated that shareholders would be expecting a premium towards the higher end of the scale for the share for share offer। ठीक है, इसको खाली याद रखना। Career company has therefore asked you to design a share for share offer scheme which will allow for 30% acquisition premium. You have been provided with the extracts of the latest financial statement। मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए तो थे, प्रॉफिट दिया गया था और ये दिया गया था। मैंने सब कुछ तो कैलकुलेट कर लिया है वैसे। देखो पता है मैंने अब तक क्या क्या इंक्लूड नहीं किया, पहले उसको कंसिडर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना फाइनेंस डायरेक्टर क्या कर रहा है, फाइनेंस डायरेक्टर एक्सपेक्ट्स द पी रेशियो to increase by 10% if acquisition proceeds। वो एक्सपेक्ट करे कि 10% से पी रेशियो बदलेगा, मतलब बड़ा होगा। तो ये मैंने पी रेशियो को मैं चेंज तो कर दिया।
Now what I am thinking is either ये देखो, Danton upgraded its manufacturing facility during the previous year and expects to make the pre-cost savings, annual pre-tax cost savings of 2.5 million from the start of the current financial। अच्छा, तो हम लोग को 2.5 मिलियन का प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग हो रहा है। तो मैं तो अगर प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग हो रहा है तो मतलब बेसिकली अर्निंग्स बिफोर टैक्स बढ़ने वाला है ना। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में 2.5 मिलियन से बढ़ा देता हूँ, तो ये मैंने बढ़ा दिया तो आ गया 118 हो गया। ठीक है। अभी उसके आगे अगर साइज से मिलियंस में ही है ना, कोई थाउजेंड्स में वगैरह नहीं है। कि ये मेरा मार्केट वैल्यू थाउजेंड्स में जा रहा है, तो आई एम लिटिल कंसर्न कि मैंने कहीं गलती से थाउजेंड तो नहीं ना लिख दिया। बस उसको लेके शेयर्स तो मेरे टोटल मुझे पता है कि कितना रहेगा। देखो वो लोग बहुत चाहते हैं कि अगर एक्विजिशन प्रोसीड हो गया ना, तो मेरा पी रेशियो 10% से बढ़ जाएगा। तो मेरा पी रेशियो हो जाएगा, एक्सपेक्टेड पी रेशियो वुड बी 14.25, बराबर है ना। करंट पी रेशियो से 10% बढ़ा दिया मैंने। अब मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अर्निंग्स को मैं ऐड कर लूँ। अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर प्राइस विल गिव मी माय ईपीएस। उससे मेरे को मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी, या सॉरी शेयर प्राइस पता चल जाएगी। और फिर शेयर प्राइस से मैं आ जाऊं मार्केट वैल्यू पे। बट वो बहुत लॉन्ग शॉट है, और कई अर्निंग्स वर्निंग्स बढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं दिया नहीं, एक्चुअली दिया है ना। अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, देखो 2.5 के अर्निंग्स इन्होंने बढ़ा के मेरे को दिए हैं। अर्निंग इन्होंने मेरे को 2.5 के तो बढ़ा के दिए हैं। और ये देखो उन्होंने मुझे क्या बोला है, कैरिन कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एस्टिमेट्स दैट प्री ये ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना है, मिल गया ये देखो। उन्होंने बोला है प्री टैक्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट सिनर्जीज ऑफ 15.2 मेरे को मिलेंगे एज a रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन। इन एडिशन द फाइनेंस डायरेक्टर एंटिसिपेट्स द एनुअल प्री टैक्स फाइनेंशियल सिनर्जीज ऑफ 5.3। तो प्री टैक्स सिनर्जी मेरे को कितने की हुई, 15.2 प्लस 5.3, तो ये मेरा बिफोर टैक्स। अरे अरे, ऐड 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 ऐड, हाँ हाँ sorry, sorry। इधर ऐड होंगे ना 15.2 एंड हाँ। जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसको मैं टोटल करूंगा तो मेरा आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। मैं इसका मार दूंगा सम, तो मेरे को आ गया 416.96 का मेरा अर्निंग्स आ रहा है। दैट्स ओके। अरे ध्यान, तो ये मेरा पी रेशियो, अब देखो मेरा पी रेशियो टोटल मेरे को कितना आ रहा था। उन्होंने बोला कि मेरे को 10% की ग्रोथ चाहिए। हाँ, माइंड यू ये देखो, ये मेरे को अब क्लिक हुआ कि कैरन कंपनी बोल रहा है कि उनको 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है वो पी रेशियो में। तो ये एक्सपेक्टेड पी रेशियो का जो ग्रोथ है ना, इट इज नॉट ओनली ऑफ कैरन। अभी एक्विजिशन हो गया ना, तो इट इज ऑफ डैंटन एंड कैरन बोथ along with synergy if we include, तो हमें टोटल 14.257 ऐसा करके चलना है, ठीक है ना। नाउ वी हैव गॉट अर्निंग्स, तो अभी हम लोग ईपीएस पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वी विल अभी ईपीएस में कर लेता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि मैं देखो क्या पता है, एक्चुअली हमने इतना सारा ब्रैकेट में किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि वो लोग चेक करते टाइम ऐसे सही से उन लोग को लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा अनश्योर हूँ इस चीजों को लेके। कंट्रोल एक्स करके मैं यहीं पे ऐसे डाल देता हूँ इसको। सारी चीजें तो एक्चुअली हमारे वर्किंग नोट्स में ही, मतलब उसका ही पार्ट बन गया है एक्चुअली कहीं ना कहीं। वो वर्किंग नोट्स हमारा आंसर बन गया अभी। ठीक है ना। अभी ईपीएस फॉर में से कैलकुलेटिंग द ईपीएस, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट, ये कॉपी करेंगे, इज दैट मैं पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे।
इधर लिख देता हूँ इस चीज को मैं, और यहाँ पे और इस चीज को रोलेक्स पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या रैप टेक्स्ट लग गया, क्या रैप टेक्स्ट नहीं चाहिए मेरे को। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। Thus, these will be included in the calculation of the uh, total pre-tax earnings for the company, for the combined company. Then tax of 20% will be charged, which will lead to the profit after tax being, कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 416, बीइंग 416.96 मिलियन। मैं डॉलर्स में लिख देता हूँ। एंड कहो तो ये सब ऐसे करके हमको हर एक चीज वहां पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। सो नाउ देखो ऐसे अर्निंग्स, वैसे तो हम लोग टैबुलर मेथड से फटाफट खत्म कर सकते हैं, बट वहां पे हमें मतलब वो सब चीजें एक एक करके वहां पे मतलब बतानी पड़ेंगी, वरना आंसर बहुत ही छोटा, बस इतने से 5 सेल दिखेंगे तो वो लोग भी मार्क्स नहीं देंगे, इज व्हाट आई अज्यूम। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज 416.96, तो मेरे को ईपीएस कितने का मिलता है। ईपीएस मेरे को मिलता है जितने का भी, ठीक है, ये जो भी मेरे को ईपीएस मिला है paste. Again, share price of the entire company. Control C, Control V. Share price of combined company. Combined company. So P ratio EPS, share price. तो P रेशियो कितना है, 14.25। ईपीएस कितना है, इतना। एंड तो शेयर प्राइस मेरी कितनी आएगी, जितने की भी आएगी ये मेरी शेयर प्राइस। उसके बाद now we will find out the valuation of the company directly. Shares, total shares ना again, तो total shares, share price 890, this 5944, ठीक है। तो ये मेरी हो गई कंपनी की टोटल वैल्यू, यहाँ पे आएगी 5944 पे रिड्यूस कर लेता हूं मैं। तो मेरा जो सिनर्जी आया फिलहाल 506 का आया हुआ है। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी आफ्टर दैट व्हेन वी रिड्यूस द the मार्केट वैल्यूज ऑफ, क्या है ये, हाँ डेंटॉन, डेंटॉन एंड एंड कौन है अभी ये, कैरन, कैरन, from the total valuation we will find out the synergy। ठीक है, तो हमें ऐसा लिखना है, इससे इससे एक्चुअली थोड़ा और ज्यादा ही लिखना है। मैंने बहुत कम लिखा हुआ है बट ठीक है। ठीक है ना, तो ये मेरा क्वेश्चन तो हो गया, इफ ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए। Advise the on a share for share exchange offer which meets the criteria specified by Danton Company. Calculate the effect of cash and share for share offers on the post acquisition wealth before। अरे ये तो बस सिनर्जी मिली है। अरे भाई इसके बाद कैश ऑफर करना बाकी है अभी भी। ये सब वर्किंग नोट में ही सही लगता है क्या फिर। अरे यार, क्या करूं अभी, ये सबको वर्किंग नोट में डाल दूं। एक काम कर देता हूँ, इसको इसको ये येलो मार्क कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ ऐसे।
कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, वी। ठीक है। इसको ऐसे मैंने अभी लिख दिया वर्किंग नोट्स में यहाँ पे। अब मुझे निकालना है कि ये कैश ऑफर बेटर है कि कौन सी ऑफर बेटर है। शिट मैन, 13.1 इज द कैश ऑफर। शेयर्स कितने हैं मेरे पास? डैंटॉन के शेयर, डैंटॉन के शेयर से ना, कहाँ गया वो 13.1 पर शेयर? हाँ। तो ये मुझे कितने वैल्यू देता है? अरे भाई, 18 में मुझे कैश देना है, इतना तो मुझे कैश देना है। वेराज मेरे को सिनर्जी हुई है 506 की सिर्फ। ओ नहीं नहीं नहीं, इतना मुझे कैश टू कैश टू ट्रांसफर। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपनी वैल्यूड, कंपनी वैल्यूड, कंपनी वैल्यूड कितनी है मेरी? तो इतनी तो मेरी कंपनी की औकात थी ही थी। अब मुझे ऊपर से कितना देना है? अमाउंट टू पे एक्स्ट्रा, ये अमाउंट टू पे एक्स्ट्रा है, अमाउंट टू पे एक्स्ट्रा। हाँ, ये मेरा सिनर्जी से माइनस होगा। तो अब ये मेरा गेन इन परसेंटेज कितना है? तो इसको मैं गेन लिख देता हूँ। गेन इन परसेंटेज फॉर्म कितना है? दिस डिवाइड बाय इतना। हाँ, है ना, वो डेंटोन ही है ना, हम वो डेंटोन ही है। तो 24.07% है ये मेरा, मेरा गेन हो गया। ठीक है ना? अभी इसके बाद मुझे किस किस का गेन परसेंटेज मतलब वो निकालना है क्या? हाँ, मुझे कौन सा बेटर है निकालना है ना, तो मुझे इतना वो करना ही पड़ेगा। गेन, गेन परसेंटेज फॉर डैंटॉन, फॉर डैंटॉन। अभी, अभी गेन फॉर कैरन। तो सिनर्जी कितनी थी मेरे पास? और मैंने अमाउंट एक्स्ट्रा ट्रांसफर्ड टू डैंटॉन, सिनर्जी मेरे पास इतनी की थी। मैंने डैंटॉन को अगर इतना दे दिया तो मेरे पास कितना पैसा बचा? चांसेस इतना। तो ये मेरा गेन हो गया। गेन इन परसेंटेज, दिस डिवाइड बाय माय मार्केट वैल्यू। तो मुझे सिर्फ थ्री, एक्चुअली ना मेरे को ये पेरेंट का कभी कभी समझ में नहीं आता कि पेरेंट के लिए हम लोग को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना है कि सिनर्जी से डिवाइड करना है। तो ये अपन जरा बाद में चेक कर लेंगे सिर्फ। ठीक है ना? फिर आता है शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। मैं क्या बोलता हूँ, जरा एक बार ना पहले ये फिगर बराबर है कि नहीं सिनर्जी की, वो चेक कर लेते हैं, वरना दौड़ लग जाएंगे। कंबाइंड प्री एक्विजिशन वैल्यूएशन 5437.3। ओ नहीं, प्री वैल्यूएशन, हाँ प्री वैल्यूएशन ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाए ना। आफ्टर वैल्यूएशन कितना आया वैल्यू? ये देखो, कंबाइंड पोस्ट मर्जर वैल्यूएशन 5961.7, 5944 आया है। जस्ट वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिनर्जीज मेरे को 524 की सिनर्जी आई है, मेरे को 506 की आई है। क्या मिस्टेक किया हमने? कंबाइंड देखो, पी रेशियो उन्होंने 14.3 लिया है, हमको भी 14.257 लिया है मैंने। चेक करते हैं बाद में। इज दैट द ओनली थिंग? बाद में कंबाइंड, एक मिनट, कंबाइंड एफ एम आई, दिस इज आई थिंक 416.96। हाँ ये देखो सेम, परफेक्ट है। 416.96, 416.9 लिया उन्होंने। ठीक है। ठीक है, ये वाला ठीक है। वो 4.3 करके, 14.3 करके चेक करूं क्या? ओ, उन्होंने उन्होंने राउंड ऑफ किया है। सी, मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं किया है पी रेशियो को, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया एक्चुअली राउंड ऑफ करने के बाद। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज सी, अब जैसे मैं यहाँ पे 14.3 कर दूंगा ना, ये देखो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट मतलब उनकी वैल्यूएशन आ गई, मतलब वो सिनर्जी की भी 524। सो एक्चुअली दे हैव राउंडेड ऑफ, मैंने वो राउंड ऑफ नहीं किया है। इसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पी रेशियो में यहाँ पे 14.3 ले लेता हूँ अभी के लिए। राउंड ऑफ,
ठीक है, राउंड ऑफ करूंगा तो आ जाता है फिर। बट अगेन दिस ऑल्सो चेंजेस क्या? नहीं, ये सेम रहता है और मैंने बाकी सब जगह पे बराबर डाला है। दिस इज परफेक्ट, हाँ ये वाला परफेक्ट ही आएगा, ये वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ देखो, गेन फॉर कैरन देखो एकदम से चेंज हो गया, 3.8 से मतलब अभी 4.25 हो गया। तो आई थिंक दैट राउंड ऑफ वाज द ओनली थिंग दैट हर्टेड अस, वरना तो ठीक ही था। कैश ऑफर कहाँ गया इनका? अब चेक कर लेते हैं ना, कैश ऑफर भी अगर इतने आ ही गए तो शेयर पर शेयर ऑफर ये लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। मेरे को कैश ऑफर देखना है। हाँ ये रहा। गेन देखो 4.2, 24.2, मेरे को आया 24.07, ठीक है। एंड 14.2, 14.25, हाँ ठीक है। आई फील इट्स फाइन ओनली। कैरन के लिए ना, हाँ कैरन के लिए। अभी शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज कर लेते हैं। उन्होंने शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के वैसे क्या बोला है? उन्होंने बोला है Danton directors indicated that their shareholders would be expecting a premium towards the higher end of the scale for a share for share offer, क्या है ना, शेयर फॉर शेयर। बट शेयर फॉर शेयर कितने का कितना दिया वो नहीं बताया, कि 1 for 1 शेयर, 2 for 1 शेयर, वैसा कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। सो मैं अज्यूम करके जा रहा हूँ कि अभी ये 1 for 1 शेयर ही होगा। 1 for 1 अज्यूम करके जा रहा हूँ। डेंटॉन के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? ये रहे। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट इज दिस फन। तो 140 शेयर्स हो गए। शेयर्स टू इशू डेंटॉन। अभी शेयर प्राइस कितनी है? शेयर प्राइस अभी मैं देखो, ये याद रखना, शेयर प्राइस हमें कैरन की नहीं लेनी है, हमें कंबाइंड एंटिटी की लेनी है। बिकॉज नाउ दिस कंबाइंड एंटिटी हैज बिकम क्या बोलते हैं, ऑफ डेंटॉन। तो बेसिकली ये ऐसा हो गया कि पहले हमने शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर किया फॉर एक्विजिशन, राइट? तो डेंटॉन ने अपने शेयर्स दिए फॉर एक्विजिशन। अब जब कैरन अपने शेयर्स देगा, जब कैरन अपने शेयर्स दे रहा होगा, उसके अंदर ऑलरेडी डेंटॉन और सिनर्जी एडअप हो चुके होंगे। तो इसलिए हमको यहाँ पे शेयर प्राइस देनी है हमारी। तो शेयर प्राइस हमारी कितनी है? अभी मैंने लिंक दिया जीरो का, यहाँ पे देखो शेयर प्राइस मैंने यहाँ पे कई तो लिखी थी, ये देखो 6.69। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दी। अच्छा, इवन इन्होंने पी रेशियो को राउंड ऑफ किया कि उन्होंने शेयर प्राइस को राउंड ऑफ किया है, वो एक बार थोड़ा सा मैं सॉरी यहाँ चेक, बस छोड़ो बाद में करता हूँ चेक वो। क्योंकि देखो ना 6.69 है, आई एम थिंकिंग 6.7 कर दूं अभी इस चीज को। ठीक ही है ना? क्योंकि फिर वरना ये भी बदल जाएगा फालतू में। तो 938 इज द इज द मार्केट वैल्यू टू ऑफर, लेकिन उनको 30% प्रीमियम चाहिए। तो वो कितना होगा? इतना होगा। तो दिस इज द वैल्यू दैट दे वांट, 1219 इज द शेयर प्राइस दैट दे वांट, बट एक्चुअली कम है। Have I done something wrong now? शेयर प्राइस एक्चुअली बहुत कम है उसके मुताबिक, तो ये थोड़ा, एक मिनट ना, इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। जैसे 30% ऑफ प्रीमियम बट टुवर्ड्स करंट मार्केट वैल्यू और टुवर्ड्स देयर डेंटॉन वैल्यू। इफ, क्योंकि देखो अगर ये लोग 30% वैल्यू ऑफ हमारे शेयर प्राइस बोले ना डेंटॉन का, तो आंसर ज्यादा सेंस बनाता है। 1381 स्टिल दैट, मतलब फिर भी वो थोड़ा ज्यादा बड़ा आंसर आता है, वरना तो मार्केट प्रीमियम इज ओनली कमिंग इतना सा। यहाँ पे कुछ तो शायद मैंने मिस्टेक की है।
एक मिनट ना, थोड़ा टाइम ले लेते हैं. Recent mergers have attracted an acquisition premium, expecting a premium towards the higher end of the scale. Premium around 25 to 30% of Danton Company's director and Danton Company's directors indicated the shareholders. Because see, uh, बिकॉज सी वो लोग कम प्राइस क्यों लेंगे? देखो, उनका उनका मार्केट वैल्यू फिलहाल 1478 का है. वो लोग 1219 या 13,884 पे क्यों लेंगे? ये 30% ना किसी और चीज का है. ये 30% मुझे लगता है ऑफ अवर टोटल मार्केट वैल्यू हो सकता है मे बी. बट इतना कम, क्योंकि वो लोग इतने कम में तो मानेंगे ही नहीं. आई डोंट थिंक सो, है ना? तो आई थिंक दिस शुड बी द रादर द शेयर और द ऑफर बीइंग मेड. This would still make sense rather than saying 30% of हमारा वैल्यू तो या 30% ऑफ व्हाट शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज का वैल्यू. दैट है ना? ऐसा 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 मुझे तो लगता है. चेक कर लेते एक बार उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, फिर मैंने कुछ गलत किया है. शेयर, नहीं, शेयर फॉर शेयर ऑफर. ये रहा प्री एक्विजिशन वैल्यू, इतना इतना. एड प्रीमियम. ओके. तो पोस्ट प्रीमियम उनके पास इतनी वैल्यू आती है. बैलेंस एक्सेस टुवर्ड्स. ओके, रिसेंट वैल्यूएशन 2.1 तो कैरन कंपनी का. आई थिंक 30% ऑफ 147 से, बट वो मैंने किया था. ओके, मे बी दिस इज हाउ दे हैव डन द कैलकुलेशन. उन्होंने इसको एज ए ट्रेडिशनल शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर नहीं बोला है. दे हैव सेड कि हमने यहाँ पे कितने शेयर के बदले कितना शेयर देना है, वो तो कहीं पे बोला ही नहीं है ना. तो फिर डोंट मेक एनी अजम्पशंस कि हमें इतने शेयर के बदले इतना शेयर देना है वगैरह, कुछ अजम्पशंस मत करो. दे हैव सेड कि ये जो हमारी वैल्यूएशन है 1478, इसका 30% हमको चाहिए. इसका 30% हमको चाहिए. ठीक है. सो नाउ द मार्केट वैल्यूएशन वुड बी फॉर डेंटॉन शेयर. ये देखो, अभी डेंटॉन बोल रहा है कि मेरे को इतना चाहिए. मतलब 1443 चाहिए प्रीमियम. अभी हमारे पास सिनर्जी कितनी की हुई थी? इतने की हुई थी. इसमें से मेरे को इन लोग को 30% प्रीमियम देना है. तो मेरे पास कितना बचेगा? एंटॉन्स प्रीमियम. तो मेरे पास, मैं कौन हूँ? कैरन. तो मेरे पास कैरन के लिए कितना पैसे बचेंगे मेरे पास? 80.82. या अगर मैं कहीं राउंड मतलब अगर मैं कहीं पे राउंड ऑफ करूंगा तो उनके जितना, मतलब 81, या जितना भी उनको मतलब वैल्यूशन आए 81.2 वगैरह मिल जाएगा, अगर मैं कहीं पे राउंड ऑफ वगैरह करूंगा तो. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट अभी राउंड ऑफ वगैरह पे. ठीक है ना? सो अगर हम वैसे गेन कैलकुलेट करने जाएंगे तो भी हमें इजीली आंसर मिल जाएगा कि इसका परसेंटेज गेन इतना है, इसका परसेंटेज गेन इतना है करके. सो देन वी कैन से कि भाई कौन सा ऑफर बेटर है, कौन सा ऑफर खराब है, ऐसा. तो बोला कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द कैश एंड शेयर फॉर शेयर्स ऑफर्स ऑन द पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ ऑफ बोथ कैरन एंड डेंटॉन कंपनीज. ये तो पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है? पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ मतलब हम लोग ये मार्केट वैल्यू की बात कर सकते हैं, जहाँ पे देखो जैसे कि इनका पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ वुड बी 1:1, और हमारा पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ वुड बी दिस प्लस मार्केट वैल्यू हमारी कितनी थी? इतनी. तो ये हो गई हमारी पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ. ठीक है, फॉर कैरन. फाइन. नाउ इन द सिमिलर फैशन, मैं बता क्या बोलता हूँ एक बार, है ना? इफ वी कैन, अभी 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 तो एग्जाम में शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट एक बार ऐसे मैं बना देता हूँ.
पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ, ऐसा अगर मैंने बना दिया ना, तो ऐसे बनेगा पर्टिकुलर्स कैरन, फिर कौन सा था ये, डेंटॉन। ठीक है, तो ये ऐसे बन सकता है। फर्स्ट वन, कैश ऑफर, ओपनिंग मार्केट वैल्यू कितने की थी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके बाद कैश ऑफर बीइंग मेड, कितना होता है कैश ऑफर बीइंग मेड, 18, इतने का मैं कैश दे देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे सिनर्जी से कितना मिलता है, मुझे सिनर्जी से मिलता है, कहाँ गया, ये है ना, हाँ ये इतना मिलता है टोटल। सेम चीज, कंट्रोल सी, एक मिनट पहले, बराबर है क्या, कैश ऑफर हमने जो किया है, हम्म, टोटल टोटल में उन्होंने खाली ये वैल्यूएशन ली हुई है, यहाँ यहाँ की वैल्यूएशन, बराबर बराबर, क्योंकि डेंटॉन का ये वाला हिस्सा हट जाएगा, सो टोटल वैल्यूएशन अब जो होगी वो होगी 1834, और यहाँ पे 14128, यहाँ पे 41277, ठीक है ना। बाबा की परसेंटेज वगैरह ठीक है, वो उन्होंने मतलब और दिखाने के लिए लिया हुआ है, वो हमने एक अलग वे में दिखाया हुआ है एक्चुअली, तुम अगर ऐसे 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 देखोगे ना, सो हमने अलग तरीके से दिखाया हुआ है उस चीज को। यहाँ पे शेयर एक्सचेंज करने के बाद ओपनिंग मार्केट वैल्यू तो ऑब्वियसली सब सेम ही रहेगी, बराबर है। सिनर्जी, अभी सिनर्जी जो होगी, हमने शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में हमको कितनी सिनर्जी मिली, हमको 81.08 की मिली। और यहाँ पे अभी कंपनी को पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ कितना मिला, या कंपनी को पैसे और एक्स्ट्रा कितने मिले, 30% उन्होंने प्रीमियम मांगा हुआ ही था। तो यहाँ पे अगर हमने सम ले भी लिया तो भी चलता है, वन, सो 1921.7। अगर हम शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज यहाँ पे देख ले, ये देखो 4041.2, और यहाँ पे 1920.5, तो यहाँ पे 1921 है, ठीक है ना, उतना तो चलता है। बाकी ये सब बाकी के जो कैलकुलेशन है उन्होंने बस ऐसे ही निकाले हुए हैं कि बेसिकली शेयर होल्डर कितना ओन करते हैं, फिर हमने कितने शेयर्स दिए थे, कितने शेयर्स इशू किए थे, इनका मेथड थोड़ा कैलकुलेशन का अलग है, बट इट्स फाइन, आई फील इतना तो चलता है। या आई थिंक इट्स गुड टू गो ना, आई थिंक वी आर गुड टू गो। ऑल्सो मैं एक बार बस बता देना चाहता हूँ, इन्होंने यहाँ पे कैसे किया पता है, इन्होंने यहाँ पे शेयर्स निकाले हैं कि हमने ऑफर कितने का किया, वो व्हाट वाज द शेयर फॉर शेयर ऑफर दैट वाज बीन अंडरटेकन इन ऑर्डर टू गो फॉरवर्ड। तो ये करने के बाद ना इनको देखो क्या मिला, पोस्ट एक्विजिशन वैल्यूएशन मिली, कि फिलहाल कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन, अगर अभी हम कंपनी को वैल्यू करने जाएंगे तो दोनों की अलग अलग सेपरेट वैल्यूएशंस कितने की होंगी, तो फिर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। तो ये जो लास्ट के 3 कॉलम है ना, ये बहुत वैलिड है व्हेन इट कम्स टू कि हमने कितने वैल्यूएशन अभी शेयर होल्डर को मिली है करंटली। जो इन्होंने आई थिंक फिलहाल तो नहीं पूछा था, इन्होंने बस मतलब पूछा था कि कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ कैश एंड शेयर फॉर शेयर ऑफर्स ऑन द पोस्ट एक्विजिशन वेल्थ ऑफ बोथ कैन कंपनीज एंड डेंटल कंपनी शेयर होल्डर्स। ये इन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए पूछा था, हमने देखो इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ निकाली हुई है, विच इज आफ्टर द एक्विजिशन कंपनी की वैल्यूएशन क्या बैठती है उसके उसके हिसाब से, विच इज फाइन, ठीक है ना। अभी लास्ट के दो थ्योरी पार्ट्स कर लेते हैं। Discuss possible sources of financial synergy arising from Caron Company's acquisition of Danton Company. देखो एक तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग डैंटॉन को हो रहा है,
नहीं, एक्चुअली डेंटोन को हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट है, ये फाइनेंशियल सिनर्जी है ना। देखो ये वाला तो प्री रहा है, देखो प्री टैक्स फाइनेंशियल सिनर्जी, तो ये हम पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे। और कहीं पे तो मैंने कुछ तो पढ़ा था। फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल सिनर्जी ना, मतलब इन द सेंस कि हमें कम पैसों, अब अभी जैसे बिकॉज टू कंपनीज हैव ऑलरेडी कंबाइंड, तो शेयर होल्डर का ज्यादा ट्रस्ट होगा हमारे ऊपर, तो हमें शायद ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लाइक हमें शायद ज्यादा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मिल जाएं। उसके बाद और क्या हो सकता है, हम लोग अगर एम्प्लॉयज को कुछ ले ऑफ कर सकते हैं। उससे करेंटली एक्सपेंडिचर होगा, बट आगे चल के बेनिफिट्स होंगे, बिकॉज वी वोंट बी पेइंग extra salaries to the employees that are actually not required. हाँ ये देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ था। Danton company as privately owned consumer electronics company established, मतलब वो 10 साल ago, significant unrelieved losses were incurred in the earlier years of development. So after Danton company has settled off the unrelieved losses with their own profits, maybe we can get the losses also, है ना। देन मतलब वो रैपिड ग्रोथ जो है, मतलब ग्रोथ बढ़ जाएगी, ग्रोथ शायद ज्यादा अच्छी हो जाए। और क्या हो सकता है फैंसी सिनर्जी में भी, जो कंपटीशन है वो थोड़े डर जाए, कॉम्पिटिटर्स might exit the market because of two bigger company which have combined, which have come together, ऐसा हम बोल सकते हैं मे बी। पर ये सारी चीजें फाइनेंशियल सिनर्जी के अंदर जाती है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार बस बोलने के लिए मैंने सोचा बोल देते हैं कि जितने भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, या जितने भी ओवरऑल सिनर्जीज हो रहे हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ। एटलीस्ट उनमें से कुछ सही होंगे ऐसा। Let's see. Many acquisitions are justified on the basis that a combined organization will be more profitable or grow at a faster rate than the companies operating independently. The expectation is that acquisition will generate higher expected cash flows or a lower cost of capital, creating value for shareholders. The additional value created is known as synergy, the sources of which can be categorized into three types: revenue, cost, and financial synergies. Okay. Based on the scenario, there are a number of possible sources of financial synergy. As a private company, Danton company is experiencing a funding constraint, whereas Karen company has, oh भाई, सबसे बेसिक फाइनेंसिंग फाइनेंशियल सिनर्जी तो यही है। जैसे मैंने बोला कि पहले मैंने क्या बोला फाइनेंशियल सिनर्जी में, कि हमें इन्वेस्टर शायद पैसा डालने में हेल्प करे, या इन्वेस्टर्स हमें पैसे दे वगैरह, ऐसा मैंने बोला था। बट एक्चुअली ये सबसे बेसिक है ना, कि एक कंपनी ही हमको शायद पैसे दे दे, या जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसके पास शायद अगर पैसे नहीं होंगे तो हम उनको देंगे, या फिर अगर हमारे पास एज अ सब्सिडरी अगर नहीं होगी तो शायद वो हमको देंगे। सो एनी ऑफ द टू कैन टेक प्लेस, राइट। The combination of the two can create additional value, since Danton Company may be able to utilize Canon Company's cash resources to fund its expansion in a way which would not have been possible otherwise, leading to an increase in the expected cash flows. Assuming both companies' cash flows, assuming that both companies' cash flows are less than perfectly correlated, those of the एक मिनट, why so, but why so, वो दोनों सेम इंडस्ट्री के हैं क्या? Oh yeah, they were are in the same industry. So basically, when two companies are in the same industry, क्या क्या हो जाता है कि when two of your companies are in the same industry, they become positively correlated. Like अगर एक के मतलब अगर लॉसेस होंगे तो फिर दूसरे के भी मतलब वो लॉसेस ही होंगे, ऐसा। ठीक है ना। फाइन। आगे वी कैन गो अहेड एंड से operating independently, less volatile than the individual companies operating individually. This reduction in volatility enables the combined company to borrow more and possibly cheaper finance than would otherwise have been possible. This is quite an interesting statement, actually. A reduction in volatility enables combined company to borrow more. Actually, won't it be less? अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो कम कंपनीज नहीं आएंगी मतलब मार्केट में।
This increases in debt capacity, and therefore the present value of the tax shield increases the value of the combined company in the form of lower cost of capital. वो ठीक है. ये दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, बिकॉज अगर रिस्क अनसिस्टमैटिक होगा तो इन्वेस्टर्स हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. सॉरी, अगर रिस्क सिस्टमैटिक होगा, यानी कि अगर हमारा मतलब ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, तो हमारे ऊपर लोग इन्वेस्ट करेंगे रादर देन हैविंग अनसिस्टमैटिक रिस्क. ये मुझे थोड़ा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब हम दोनों की सेम ही इंडस्ट्री है. तो अगर सेम ही इंडस्ट्री है, मैं सेम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर हमें लोग जेन्युइनली उतने इन्वेस्ट करेंगे क्या, बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है. Further benefits may arise if Karen is able to utilize Danton's unrelieved tax losses barabar, while his Danton is no longer making loss and could offset these tax losses independently. The combined company may be able to obtain tax relief earlier since the acquisition increases the availability of profits against which carried forward losses can be offset. The present value of the tax saved will therefore the present value of the tax saved will therefore be greater in the combined company if both companies were publicly traded. अब ये वाला, if both companies were publicly traded, it would be no benefit from diversification since investors are capable of diversifying at a lower cost with greater ease than the company. अच्छा, ये वाला ओके, दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि इन्वेस्टर्स के पास वो ऑप्शन ही खुद है कि वो लोग खुद फूड आर्मी या फार्मास्यूटिकल्स ऐसी ऐसी कंपनीज में डाल सकते हैं, अलग अलग कंपनीज में डाल सकते हैं. अगर वो तुम्हारे कंपनी में डालना चाहते हैं, तो वो लोग ये नहीं देख रहे कि तुम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा. क्योंकि उनके पास खुद के पास वो पावर है कि वो कहीं पर भी पैसा डाल सकते हैं. However, Danton company is privately owned and the shareholders are therefore exposed to diversifiable unsystematic risk. Therefore, acquisition may lead to potential diversification and risk reduction benefits. The reduction in cost of capital increases the value of the combined company. Okay. Are exposed to diversifiable risk. Danton company is privately owned, इसलिए उसके shareholders are exposed to diversifiable unsystematic risk. Therefore, an acquisition may lead to potential diversification of reduction and risk reduction benefits. अच्छा, रिस्क रिडक्शन के बेनिफिट्स की वजह से उन लोग का डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी वर्क कर जाएगी. ठीक है, आगे. Discuss the likely reaction of Karen companies and Danton company shareholders to the cash and share for share offers. Cash offer. The main advantage of a cash offer is that it provides Danton company shareholders with a certain and immediate return. हाँ बराबर है, ये मैं एक्चुअली कहीं पे पढ़ा था कि कैश विल गेट एन इमीडिएट ऑन एन इमीडिएट बेसिस सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन एनीवेयर वगैरह वगैरह. मेरे शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर के लिए आपको आपको मतलब वेट करना पड़ेगा कि कब कंपनी डिविडेंड देगी, कब कंपनी के प्रॉफिट से ऊपर जाएंगे एंड सो ऑन. However, the premium is lower compared to the share for share offer and may be reduced even further if the unrealized gains give rise to tax liability. Indicating their preferred premium under both, but indicating their preferred premium under both offers, it is possible the shareholders have priced the risk associated with an uncertain share for share offer, and on this basis may be indifferent between the two. The cash offer may give rise to agency issues. The cash offer may give rise to agency issues. Since Danton Company's founders no longer have a stake in the business, even though Karen Company's board is keen to ensure the founders remain in position after the acquisition. एक्चुअली काफी कैश ऑफर भी एक्चुअली काफी ट्रिकी है ना, बिकॉज मैं ही तुम्हें एक्वायर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ कि तुम अब मेरी कंपनी बन जाओ, फिर मैं ही तुम्हारे कैश को कहीं ना कहीं हैंडल अप कर सकता हूँ कि मैं ही तुम्हें मतलब बता सकता हूँ कि कैश को कहाँ डालना है. इट मेक्स सेंस राइट.
फिर the information provided is too limited to read too much into the intentions of the venture capitalist. However, typically a venture capitalist would be expected to exit within 3 or 5 years. In this case, they may prefer the certainty of the cash offer. वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट करने के लिए वो लोग अभी के अभी कैश ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं. द कैश ऑफर ट्रांसफर्स मोर ऑफ द एडेड वैल्यू. द कैश ऑफर transfers more of the added value to Karen without the need for dilution, which may appeal to the shareholders. As indicated, the as indicated in the question, Karen company's existing reserves are sufficient to fund the cash offer, although this may constrain future dividends or and or investment decisions. स्टार्टिंग के सेंटेंस में उन्होंने बराबर से बोला कि देखो जो कैश ऑफर है दैट विल ऐड मोर वैल्यू टू कैरन बिकॉज शेयर्स जो है हमारे डाइल्यूट नहीं होंगे, ज्यादा हमारी इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट नहीं होगी. मैं यहाँ तक सही था, मैं यहाँ तक अच्छे तरीके से सब कुछ फॉलो भी किया. But then, as indicated in the question, Karen company's existing reserves are sufficient to fund the cash offer. हमारे फिलहाल क्वेश्चन में दिया है क्या कि हमारे रिजर्व्स सफिशिएंट है. और एज एन ऑल्टरनेटिव द बोर्ड इज कंसिडर नहीं यहाँ पे ऊपर क्या है. एंड द कंपनी हैज सफिशिएंट कैश रिजर्व्स. ओके ठीक है, टू परचेज डेंटन आउटराइट. ठीक है, लेकिन इससे फ्यूचर डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट पे शायद प्रेशर आ सकता है. लास्ट इज शेयर फॉर शेयर ऑफर. Both sets of shareholders benefit from increased wealth as a result of the share offer, albeit only marginally. So in the case of Karen Company shareholders, another drawback is that Karen Company shareholders' percentages are also diluted under this method. Another drawback is that Karen Company shareholders' percentages are also diluted under this method. However, a share for share offer However, a share for share offer would ensure that Danton Company's founders' interests are aligned with that of Karen Company. हाँ, ये बहुत सही पॉइंट है कि शेयर फॉर शेयर ऑफर की वजह से दोनों के जो इंटेंशंस है वो अलाइन हो जाएंगे और दोनों के कंपनी को लेके इंटरेस्ट भी अलाइन हो जाएंगे. Reducing possible agency cost. It also provides Danton Company shareholders with the right to participate in the future growth of the larger company, which the cash offer would prevent. No basis has been provided for the systematic benefits. The increase in shareholder wealth is so marginal, even a minor deviation from the estimates could result in a reduction in the shareholder wealth for the owners of Karen Company. On this basis, it is quite likely they will not approve of a share for share offer without further negotiation around the share premium. Okay, or the acquisition premium. ठीक है.